भी गाया बजाया जाता है खुदा के लिए होता है। हालेलुया। सोरी है तेरी साड़ी है बना ते मददियो सखिया विच जेड़ा साड़ा है खुदा ते मददियो सखिया विच जेड़ा साड़ा है खुदा सोरी है तेरी साड़ी है बना डर नहीं पावे जमी जावे उधर इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमी जावे उधर सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर पैन जा सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर पैन जा रब साड़ा सोरी है के नाल साड़ी है बना हड़े भी आवे नाल पानी करने शोर पावे जे करे हड़े भी आवे नाल पानी करने शोर खौफ ना करे हे पहाड़ा छड़ जाने जा खौफ ना करे हे पहाड़ा का भावे छड़ जाने जा रब साड़ा सोरी है ते नाल साड़ी है बना शहर नो खुश कर दिया एक नदी है दारज दिया शहर नो खुश कर दिया पाक रब ने असरानो जिसदा मालिक है खुदा पाक रब ने असरानो जिसदा मालिक है खुदा रब साड़ा सोरी है के नाल साड़ी है बना उस दे ना जो बशी होवेगी ऐ खुदा विच उस दे ना जो बशी होवेगी होवेगा मदद तारे रब उस शहर दा बज रहे हो एक मदद तारे रब उस शहर दा रब साड़ा सोरी है के नाल साड़ी है बना जोश विच ते बादशाहियां हिल गया कौमाया जोश विच ते बादशाहियां हिल गया धरती सारी बिगड़ गई रब ने जदों की सदा धरती सारी बिगड़ गई रब ने जदों की सदा रब साड़ा सोरी है के नाल साड़ी है बना लश्करां दा रब साडे नाल है जो यहोवा लश्करां दा रब साडे नाल है जो खुदाया तू बिना है तो ये साड़ी है बना जो खुदाया तू बिना है तो ये साड़ी है बना रब साड़ा सोरी है ते नाल साड़ी है बना सखिया विच जेड़ा साड़ा है खुदा जेड़ा साड़ा है खुदा जेड़ा साड़ा है खुदा
والے خدا تیرا شکر ہو. سورج چاند ستارے وادیوں کو پہاڑوں کو بنانے والے خدا تیرا شکر ہو. بحر کلثم کو 2 حصے کرنے والے خدا تیرا شکر ہو. پانیوں پہ چلنے والے خدا تیرا شکر ہو. میرے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آسمانی باغ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع ناصری آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے خود کو قربان کیا. یسوع ناصری آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اچھا مددگار بھیجا. اس مددگار کے لیے اس پاک روح القدس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو ہر بات میں ہر کام میں اور خدا کی عبادت کرنے میں ہماری زبان کا ذمہ لے لیتا ہے. آسمانی باتوں کے گہرے بھیتوں کو ہم پہ ظاہر کرتا ہے. اس پاک روح القدس کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم پہ گہرے بھیتوں کو ظاہر کرتا ہے, ہمیں گائیڈ کرتا ہے, نیکی کا اور بدی کا ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کلام کے مطابق کیسے زندگی کو گزارنا ہے. اسی پاک روح القدس کو اس چرچ میں اس ہیکل میں مانگتے ہیں کہ پاک روح القدس کا ابر یہاں پہ چھایا رہے. ایک ایک جان جو موجود ہے اور ایک ایک جان جو آنے والی ہے سب کو پاک روح القدس جی اپنے مسے سے بھر دے. آج کی عبادت جو ہے وہ بہت سی گواہیوں کو لے کر آئے. میں ورشپ ٹیم کے لیے, ان کے گلوں کے لیے, ساز و آواز کے لیے, ان بچوں کے لیے جو ساز کو بجانے والے ہیں ان کے ہاتھوں کے لیے, گلوں کے لیے مسا اور برکت مانگتی ہوں. پاسٹر صاحب کے لیے برکت مانگتی ہوں میرے خداوند جی جو روح اور سچائی سے تیری خدمت کرتے ہیں. آج کے پاک کلام کے لیے اور بیٹی الشبا کے لیے دعا مانگتی ہوں میرے خداوند جی. اس کے سر سے لے کے پاؤں تک میرے خداوند جی تو اپنا اختیار لے لے, مسے سے بھر دے. اس کی زبان کا ذمہ لینا, الفاظوں کی ترتیب دینا, نہ اپنی سوچ سے, نہ عقل سے, نہ طاقت سے, بلکہ پاک روح القدس کی حکمت سے آج کے پاک کلام کو بیان کرے. نالج سے نہیں بلکہ مسا کے سبب سے پاک کلام کو جب بیان کرے تو بندھن جوئے جو ابلیس کے ہیں وہ ٹوٹ جائیں, ختم ہو جائیں. میرے خداوند جی عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک تیرا مسا, تیرا ابر یہاں پہ چھایا رہے. اور میرے خداوند جی اس بلیسنگ کو, اس مسے کو ہم اپنے گھروں میں بھی لے کے جائیں. آج کا پاک کلام 1000 گنا پھل لائے. یہ سب کچھ مانگتی ہوں یسوع ناصری کے نام سے, آمین. آپ کو عزت و جلال دیں گے. ہاللیلویا. تھک گئی ہاں, ہار گئی ہاں, اپنے روگ تو ہار گئی ہاں. ہن کبھی بھی نہ کسے والے جاؤں گی, ہن کبھی بھی نہ کسے والے جاؤں گی. یسوع جی تیرا بھلا چھکے چنگی ہو جاؤں گی. یسوع جی تیرا بھلا چھکے چنگی ہو جاؤں گی. تیرا بھلا چھکے, بھلا چھکے, بھلا چھکے, تیرا بھلا چھکے, بھلا چھکے, بھلا چھکے. یسوع جی تیرا بھلا چھکے چنگی ہو جاؤں گی. یسوع جی تیرا بھلا چھکے چنگی ہو جاؤں گی.
गम ने यसु बड़े बड़े तेरे गम ने यसु खोल दे पौधे गम ने यसु खोल दे पौधे गम ने यसु बड़े रोग तो मैं अज रख जाने बड़े रोग तो मैं अज छुट जाने यसु दे तेरा भला चुके चंगे हो जाएंगे यसु दे तेरा भला चुके चंगे हो जाएंगे तेरा भला चुके तेरा भला चुके यसु दे तेरा भला चुके चंगे हो जाएंगे यसु दे तेरा भला चुके चंगे हो जाएंगे यसु दे तेरा भला चुके चंगे हो जाएंगे हालेलुया 예수 되시라 고라야 주베리오 데사 जगविच पांदे ने फता कोलाया जवेरिया देसा जगविच पांदे ने फता भाई अभी तेरी रहने देना सुर में मिलके गए सुर में 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 सदा हंसना सदा कबूल फरमाई सुधी हथुरी बिच नच नच गावा ओए सुधी हथुरी बिच नच नच गावा जशनु बनावा देता भला जुबान ये सुधी हथुरी बिच नच नच गावा ओए सुधी हथुरी बिच नच नच गावा जशनु बनावा देता भला जुबान हालेलुया 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 हालेलुया
संगीत नाद साधु करते संगीत नाद सुना हर मेरे जगते जावा सुना हर मेरे जगते जावे जश्न मनावे तो भला जीवानी हालेलुया 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 सुना सब तो सुना तुझे जला कोई हो नहीं होगा ये सुना सब तो सुना तुझे जला कोई हो नहीं होगा ये सुना हर मेरे जगते जावे ये सुना हर मेरे जगते जावे जश्न मनावे तो भला जीवानी हालेलुया सुती हथुरी विच नच नच गावा सुती हथुरी विच नच नच गावा जश्न मनावे तो भला जीवानी हालेलुया 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 सोले में सोले में सोले में सोले में सोले में Hallelujah, खुदाम के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसी तालियों के गोद में मैं दावत देती हूँ बेटी लिशबा खुदा की खादमा को के आए हमारे साथ खुदाम का कलाम बयान करें। आए चल हम हाथ के अपने सर को यूं ही खुदावन के हुजूर में झुकाए रखेंगे, अपना ध्यान और ज्ञान खुदावन की तरफ लगाएंगे। वो वादों में सच्चा है। उसने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। वो अपने वादा के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है और हमसे कलाम करने को है। अपने ध्यान को उसी की तरफ लगाएंगे, अपने कानों को उसकी तरफ झुका देंगे ताकि हम जानेंगे आज रब लफाज हमसे क्या फरमाता है। हालेलुया। ऐ बाप आसमानी, मैं रूह में होकर यीशु मसीह नासी के नाम के वसीला से मिन्नत और फरियाद करती हूँ। ऐ बाप आसमानी, अपनी खुदी का इनकार करते हुए अपने आप को एक मर्तबा फिर पीछे करते हुए वो मददगार खुदावन जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐ बाप मैं तेरी रूह को ऑनर देती हूँ। ऐ खुदा की पाक रूह, तू मुझ पे होकर आज इन लोगों से कलाम करना।
दुआ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। मसीह में आप सबों की सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज हम अगर जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं तो सिर्फ उस पर ईमान ले आने के वसीला से। हालेलुया। आए अपनी तरबियत और नसीहत के वास्ते खुदावन के जिंदा जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। आज हम जानेंगे, बल्कि बहुत सी मर्तबा आपने इस बात को अपनी जिंदगी में सुना होगा, लेकिन आज हम गौर करेंगे कि खुदा बाप ने अपने बेटे को क्यों बख्श दिया था। हालेलुया। और ये आम सी बात है, हम बड़ी मर्तबा इस हवाले को सुन चुके हैं कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि आमीन। लेकिन हम जानेंगे कि ये सारा मंसूबा जो बाप ने बनाया है वो हमारे लिए था। उस ना उसने अपने लिए ना बेटे के लिए बल्कि किसके लिए, हमारे लिए ये मंसूबा बनाया था ताकि हम बचे, हम जिंदगी पाए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए खुदावन के जिंदा कलाम में से यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। तो जब निकाले तो बुलंद आवाज से कहें आमीन। यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदावन के कलाम में लिखा है, गौर से सुनिएगा प्लीज, ताकि हम वक्त को मद्देनजर रखते हुए आज अपनी जिंदगी में खुदावन की आवाज को सुने। आमीन। गौर से सुनिएगा। इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा, खोला और बोला जाना हम सबों के लिए खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। आप सब तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीजों, ये बात खुदा बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने से पहले ही जो है हम पर आया कर दी थी। ये भेद पहले ही खोल दिया था अपने बंदा यशायाह के जरिए से। ये बात, ये पेशन गोई, ये आगाही पहले ही दे दी थी कि मैं अपने बेटे को बख्श दूंगा। हालेलुया। और कहा कि वो मेरा बेटा होगा और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर,
फिर ये भी उसने लिखा कि जो कोई मेरे बेटे की सुनेगा वो जिंदगी पाएगा, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। इसका मतलब जिसकी जिंदगी में यीशु नहीं है उसकी जिंदगी अबदी नहीं है, वो अब तक जिंदा नहीं रह सकता, वो बच ही नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात को जाने कि खुदा बाप ने हमारे लिए कितना बड़ा मंसूबा बनाया, हम पर तरस खाया और हम पर रहम कर दिया है, हमारी हालतों को देखकर हम पर रहम किया है। हम दिन में पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं और कभी कभी तो मां प्यो भी आकी आंदे ने और ला देने बच्चे ने मुंह दे तू मैनू वखरी सताया होया है, आता है ना गुस्सा। तो लेकिन खुदा ने कभी हमारे साथ गुनाहों के बदले सलूक नहीं किया हमसे, जिस तरह हम उसकी नाफरमानी करते हैं उसने हमारे साथ सलूक नहीं किया। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि वो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा हमसे प्यार करता है, उसकी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है, वो आपको रद्द नहीं करता, उसने आपको रद्द नहीं किया, उसने आपको मेरे अजीजों हलाक होने के लिए नहीं बनाया, उसने आपको अपनी हाथों सताए जाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उसने आपको बनाया है कि आप उसके साथ उसके जलाल में ज़ाहिर हो। हालेलुया। उसने आपको बुलाया है ताकि जहां वो है वहां आप हो उसके साथ। वो चाहता है कि आप उसके साथ हो, वो चाहता है कि आप रोए नहीं बल्कि आपकी जिंदगी खुशी और शादमानी से भरी हो। वो चाहता है कि आप कभी बीमार ना हो, लेकिन फिर भी हम बीमार रहते हैं, फिर भी अपनी हमारी जिंदगी में काम करता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम पूरे दिल से यीशु पर ईमान नहीं लेकर आए। ईमान का मतलब समझ रहे हैं आप? हमने पूरे दिल से उसे अपना मानना ही नहीं है। जब उसको अपना मानोगे तब उसकी सुनोगे भी, तो जब उसकी सुनोगे तो यकीनन जिंदगी पाओगे। तो जिंदगी दे विच हमेशा दी जिंदगी दे विच कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया। बल्कि लिखा है कि वो उनके तमाम आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। वो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहता, वो आपको किसी का मोहताज नहीं देखना चाहता, वो आपसे इतना प्यार करता है। लेकिन सिर्फ कमी हम में है कि हमने पूरे दिल से उसे अपना माना ही नहीं। लेकिन फिर भी बाप कहता है कि मैं अपना बेटा तुम्हें बख्श देता हूँ, तुम जब उस पर पूरे दिल से ईमान लाओगे तो यकीनन मैं तुम्हारे सब गुनाह भी माफ कर दूंगा, तुम्हारे सब कसूर माफ कर दूंगा और तुम्हें अपने बेटे के लहू से धोकर सारी नाराजगी से पाक कर दूंगा। हालेलुया। एक माँ बाप ने जो बच्चा सतांदा है ना, ते माँ बाप गुस्से में आके उन्हें मार देंगे, आके जान देंगे। लेकिन खुदा भी तो है ना, हमें कितना बर्दाश्त करता है, हम उसके खिलाफ कितनी काम करते होंगे, कितनी बातें कर। वो पहली गल तो है वे जिहड़ी गल खुदा नूं नापसंदीदा है, ओही गल साडे दिल दे विच ख्वाहिश है जो खत्म नहीं होती, जो बढ़ती जाती है। और ख्वाहिश बढ़ जाने से जो है वो गुनाह पैदा होता है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा होती है। लेकिन मेरे असीसों, हमें अपने आप को खुदावंद के सपुर्द करना है। हालेलुया। क्योंकि वो आया इसीलिए ताकि तुम नजात पाओ, तुम छुटकारा पाओ, तुम रिहाई पाओ, तुम शिफा पाओ, उसके मार खाने से तुम शिफा पाओ। जब तुम ईमान ले आओगे उस कोड़ों की मार पर, तो मिजान लगे आपकी जिंदगी में बीमारी आकर काम करे। जब आप उस लहू की कुदरत पर ईमान लेकर आएंगे तो आप घर बैठे शिफा पाएंगे। आप बोलेंगे कि यीशु मैं तेरे मार खाने से शिफा पाता हूँ, पाती हूँ, तो आपके बदन से फिर वो बीमारी जाती रहेगी। जब आप यीशु को कहेंगे यीशु मुझसे ये गुनाह हो गया है, मेरी जिंदगी को यकसर तब्दील कर दे, तो वो फिर आपको अपने
की 2 आयत में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। आमीन। तारीकी का मतलब समझ रहे हो? अंधेरा। और अंधेरे में कुछ नजर आता है? नहीं आता। ऊंची आवाज से अंधेरे च कुछ नजर आता है? नहीं ना आता। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। वो चाहता है कि हम उसे देखें, उस नूर को देखें जो दुनिया में आया है, ताकि हमारी सोच रोशन हो जाए। आज हम नाकाम क्यों हैं? क्योंकि हमारी अकल बंद की हुई है इब्लीस ने। हमें समझ नहीं आती कि हमें करना क्या है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी नाकामी की हालत में है। लेकिन जब यीशु से राबता होगा, जब उसका नूर आपकी जिंदगी में चमकेगा, आपकी अकल रोशन हो जाएगी, आप हिकमत से भर जाओगे, आप दिनाई से भर जाओगे। हालेलुया। आपको हर एक बात की समझ होगी, आप कभी नाकाम नहीं होंगे, आप जिंदगी के हर मामले में कामयाब होंगे, आप कभी भी पीछे नहीं आएंगे बल्कि आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको देखकर दूसरे कहेंगे मेरे होते वगैरह बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी इस कदर ब्लेसफुल हो, तो आप उस नूर को अपनी जिंदगी में लो, उस पर ईमान लाओ। हम उसके बगैर कुछ नहीं है। इसलिए तो बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। और यीशु फरमाते हैं कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप तक पहुंच ही नहीं सकता। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ करेंगे। हालेलुया। हम उस पर ईमान ले आ चुके हैं, क्योंकि उसकी कुदरत ही ऐसी है। हम उसका नाम लेते हैं, अजीब मुशीर खुदाए कादिर है। कादिर का मतलब कुदरत वाला खुदा। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜੀਬ ਮੁਸ਼ੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हालेलुया। उसके नाम में ऐसी कुदरत है कि आदमी, शख्स और जिंदगियां बदल जाती हैं, बदरूहें थरथराती हैं, मुझे भाग जाता है। हालेलुया। उसका नाम इस कदर कुदरत से बना हुआ है। जब आप उससे जुड़ जाएंगे तो तब के आपकी जिंदगी में क्या काम होंगे। हालेलुया। बस जरूरत है कि हम जो आज भी तारीकी में धंसे और फंसे हुए हैं, और इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है, और इब्लीस जो है वो तारीकी है। क्यों? क्योंकि तारीकी जो है वो गुनाह की सूरत है, और गुनाह तभी हमारी जिंदगी में होता है जब हम यीशु से जुदा होते हैं और इब्लीस हमारी जिंदगी में काम करता होता है, तब हमारी जिंदगियां तारीकी में होती हैं। इब्लीस ने हर तरह से हमें अंधा बनाया होता है, हमारे कानों को बंद किया होता है कि हम सच्चाई से वाकिफ ना हो जाए, हम यीशु को जान ना सकें। आपको पता है कि वो हारा हुआ है। जब हम यीशु की कुर्बानी को याद करते हैं, इब्लीस को आग लगती है। क्यों? क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उस वक्त में हार गया था। जब आप यीशु के मार खाए जाने को याद करते हैं, तो इब्लीस आपकी जिंदगी से भागता है, क्योंकि उसे याद आता है कि मैं हारा हुआ हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे पूरे दिल से। हालेलुया। जब खुदा बाप के इकलौते बेटे को पूरे दिल से कबूल करोगे, तब नजात पाओगे और गुनाहों की माफी होएगी, आप शिफा पाओगे और अपनी जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। फिर आपकी जिंदगी तारीकी में नहीं रहेगी। आप खुद कहेंगे मेरा दिल बदल गया, मैं पहले वगैरह नहीं रहा। हालेलुया। हमें कोई इंसान बदल नहीं सकता, हमें दुनिया का पैसा बदल नहीं सकता, कोई कीमती चीज भी ले ले तो वो हमें बदल नहीं सकती, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के। हालेलुया। उसकी मौजूदा कुदरत के सिवा हमें और कोई बदल सकता ही नहीं। जब हम उसे अपने दिल में रखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जन्म लिया, उन्होंने बाप की मर्जी ਨੂੰ पूरा ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਬਲਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ज़बूर 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि गैरों के पीछे दौड़ने वालों का गम ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਆ, आपकी सोच बंद है, आप बेवकूफ हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको रोशन करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप सच्चाई से वाकिफ हो जाए और सच्चाई आपको आजाद करे। हालेलुया। बस तुम सच्चाई से वाकिफ हो ते कलाम तो सिवा तुहानू किते सच्चाई लभनी नहीं। जिहड़ा मर्जी सच्चा बंदा लभन की कोशिश कर लो, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन तुहानू सच्चाई कलाम तो सिवा, यसु तो सिवा तुहानू अपनी सच्चाई किते लभनी नहीं। अगर जिंदगी को खुशी और शादमानी से बसर करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हर तरह से देखो और समझो और सुनो, तो फिर यसु मसीह को पूरे दिल से एक्सेप्ट करो। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 8 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, गौर से सुनिए, एक कलाम ताड़े लिए। आमीन। यीशु तानू की कह रहे हैं, गौर ना सुनिएगा। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। यीशु कहते हैं दुनिया का नूर मैं हूँ, और उसने देखा कि हम तारीकी के कब्जा में हैं, उसने देखा हम इब्लीस की गुलामी में हैं, उसने देखा कि हम तासीरों से जकड़े हुए हैं, हमें इब्लीस की कुव्वतों ने जकड़ा हुआ है, हमारा बदन जो वो रिलैक्स नहीं है, हमारे बदन पर इब्लीस की तासीरों ने जो बीमारी की सूरत में जकड़ा हुआ है। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम निजात पाओ, मैं चाहता हूँ तुम रिहाई पाओ, बस ये तभी मुमकिन होगा जब तुम मेरी पैरवी करोगे। आमीन। पैरवी करने का मतलब समझ रहे हो? जिदों तुसी मेरी सुनोगे, जिदों तुसी मेरी मनोगे, जिदों तुसी मेरी ताबेगिरी दे विच आ जाओगे, जिदों तुसी मेरे फरमा बरदार बन जाओगे। हालेलुया। ਅਸੀਂ इंसानां दी बड़ी फरमा बरदारी करने आ जितों सानू कुछ मिलदा भी नहीं है। खुदावन की फरमा बरदारी करके देखो तो वो तुम्हें मुफ्त निजात देगा, वो तुम्हें मुफ्त शिफा देगा। तू रात को सोकर जो सोचा होगा सुबह वो तेरी जिंदगी में मुहैया कर देगा। वो तो तेरा इतना ख्याल रखता है, वो तुझसे प्यार करता है, और उसकी मोहब्बत की इंतहा देखो। साडे पैदा होने तो पहले साडा फिदिया साडा कफारा दे के आसमान पे चढ़ गया। हालेलुया। और जब फरिश्ता मजूसियों के पास गया तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ कि दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। हालेलुया। और उसने कहा कि ये खुशखबरी सारी उम्मत के वास्ते होगी। आमीन। हमें खुशी की खबर सुना दी गई। आज अगर हम ना उम्मीद है, अगर आपकी जिंदगी में काम रुके हुए हैं, तो मैं आज के दिन आपको खुशी की बशारत देती हूँ कि यीशु मसीह नासरी चाहता है कि वो आपकी जिंदगी को आजाद करे, वो आपके आंसू को पोंछ दे, वो आपको कामयाबी दे, वो आपको सरफराजी दे, वो आपकी दिली हर नेक ख्वाहिश और मुराद को पूरा करे। तो मेरे अजीजों, उसको पूरे दिल से
च शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है मुबारक है वो जिनके जामे धुले हुए हैं। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ अगर गुनाह आ, अगर ਅਸੀਂ तौबा नहीं ਕੀਤੀ, अगर ਅਸੀਂ गुनाह ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ नहीं ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੈਣਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੈ, क्योंकि उसने साफ कह दिया तेरे उस वक्त कहणगे तेरे नां तो यीशु सी मोजज़े कीते, मुर्दे भी जिंदा कीते, ते यीशु ने की कहना है मेरी ताड़े नाल वाकफियत नहीं है। किन लोगों की वाकफियत उसके साथ है? जिनका दिल उसके साथ लगा हुआ है, जिन्होंने अपना दिल यीशु को दे दिया है। हालेलुया। उन्हां लोकां वल्ले वेखिए, उन्हां मुकद्दसीन दे वल्ले वेखिए जिन्हां ने यीशु नाल सच्ची मोहब्बत की और मोहब्बत की इंतहा नहीं रही, उन्होंने अपनी जान तक दे दी। आलू के साथ उनको चीर दिया गया और तेल में उनको डाल दिया गया और उनको कत्ल कर दिया गया, पर वो यीशु के नाम की गवाही पर कायम रहे, क्योंकि उनको पता था कि हम मर के भी उसी के हैं। हालेलुया। और एक मौत ही तो वो रास्ता है जिससे दाखिल होकर हमें यीशु के पास जाना है। मेरे असीसों, जब हमारा दिल उसके साथ लगा होगा, हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा, यहाँ तक कि मौत का भी नहीं रहेगा। ते आज जैसी बीमारी आए ते डर के बह जाने, मैं बीमार हाँ, मैनू बड़ी कमजोरी, मैं अज चर्च नहीं गया क्योंकि मैं बीमार सा। थोड़ी सी बीमारी आई और हमारी मोहब्बत कहाँ गई, वो दुआएं वो कहाँ गई, ऊंची ऊंची पुकारना खुदावंद को, ये तो मोहब्बत ना रही। ये तो फिर फॉर्मैलिटी पूरा करना होया ना, ये तो फिर वो गल पूरी होगी ना जी खुदा सीधी ते साफ कहना है, ये उम्मत होठों से मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। बाप ने आपके लिए अपने बेटे को बख्श दिया है, आपके लिए इतना बड़ा मंसूबा बना दिया गया है, ते आज असी फिर भी वेखदे होए वेखिए ना, सुनिए ना और उन्हें कबूल ना करिए। आज असी अपने दिल में सख्त किया है ना, कल वो भी सख्त कर लेगा अदालत दे रोज। असी कहांगे यीशु असी बड़ियां दुआवां अटेंड कीतियां तेरे नाम तो, असी ते ऐ भी कीता ओ भी कीता, नहीं कहना मेरी ते ਤੁਹਾਡੀ कोई वाकफियत ही नहीं है। जब आपका दिल उससे लगा होगा, जब आप अपने दिल में उसे पहला दर्जा देंगे, तब आप जिंदगी पाओगे, तंदुरुस्ती भी पाओगे और खुदा बाप के साथ उस रिश्ते को भी जो टूट गया था मजबूत होता हुआ पाओगे। हालेलुया। इसीलिए उसकी पैरवी करोगे तो अंधेरे में नहीं रहोगे। और पता है खुदावन फरमाता है जहान और इसमें बसने वाली हर एक चीज का खात्मा होना जल्द है, ते हो भी रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। तो खुदावन फरमाता है जो मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप उसकी पैरवी करोगे, ज़मीन पर रहते हुए उसकी फरमाबरदारी में रहकर जिंदगी बसर करोगे, उसके ताबेगिरी में रहकर जिंदगी बसर करोगे, उसकी मर्जी को पूरा करोगे, तो आप कभी मिटोगे नहीं। हाँ, वक्त दे मुताबिक असी जमीनी सफर खत्म करके खाक जरूर होंगे, लेकिन जब अदालत के रोज हिसाब होगा तो तब अबदी जिंदगी पाएंगे। और दूसरी मौत जो है वो आग की झील है, हमें उस मौत से बचना है, हमें उस सजा से बचना है। आज अपने आप को खुदा यीशु के ताबे कर देना है, क्योंकि उसने कहा तुम मेरे ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भागेगा। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब साडी जिंदगी च इब्लीस क्यों काम कर रहा है? ਅਸੀਂ खुदा दे ताबेगीर नहीं है, ਅਸੀਂ खुदा दे वफादार नहीं हैं और ਅਸੀਂ उस पाक कुर्बानी फिदिया और कफारा ਨੂੰ कबूल ही नहीं किया, जिहदी वजह तो साडी जिंदगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਈਆਂ और अबलीस ने सानू इस कदर वरगलाया होया। ਉਹਨੂੰ पता है मैं तो संडे नाग जी ਇਹ क्यों बच रहे ने, ਇਹ भी आन। वो आपसे जलता है, वो आपकी बरकतों से जलता है,
हालेलुया। लूका रसूल की मार्फत लिखी ये इंजील 4 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावन का रूह मुझ पर है। यीशु फरमा रहे हैं, गौर से सुनिए, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों, गौर से सुनिए, यीशु अपने आन दा मामला दस रहा है कि मेरी आन दी वजह की है। हालेलुया। यीशु दे इस दुनिया दे विच आन दी वजह नूं असीं जानांगे। कहता है कि खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया। आज हम कुचले हुए हैं वक्त और हालात से। आज हम इब्लीस के हाथों सताए जा रहे हैं। बीमारियों ने हमें जकड़ा हुआ है। हमारी जिंदगी बेसुकूनी है। इतना पैसा कमान दे बावजूद मेरी पूरी नहीं पै रही, मैनू सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को आज तक जाना ही नहीं, उसे अपना बनाया ही नहीं। वो मुझे आराम देगा। हालेलुया। आपके दिल में ये जुस्तजू होनी चाहिए कि वो जो निजात का बानी है, वो जो मुझे आराम देना चाहता है, मैं उसकी सुन लूं। हालेलुया। जब आप उसकी सुनोगे तो आप हर तरह से रिहाई पाओगे। आप बुज़दिल हो, वो आपको दिलेर बनाएगा। आप कमजोर हो, वो आपको जोरावर बनाएगा। तुसी बदरूआं तो डरदे हो, जो यसु नाल रब दा होएगा ना, मैं इस चीज नूं बड़ा देखदी हाँ, किते बदरू का नाम लिता जाना ते है लोग हैं जी कंब जाते हैं। बदरू, आपको पता है वो हवा है, और हवा तो सिर्फ महसूस होती है, उनके अंदर कोई कुवत नहीं होती, लेकिन आपके पास इख्तियार है। हालेलुया। इब्लीस हारा हुआ है, वो हारा है, वो जीरो है, उसके पास कोई कुवत नहीं है। उसके सारे घमंड को, उसके सारे जोर को यीशु नासरी ने खत्म कर दिया है। आपको जोर उसने दिया है, उस जोर को लो, उस इख्तियार को लो और पूरी दलेरी के साथ उसका मुकाबला कर दो, वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। जब तुम यीशु मसीह को पूरे दिल से अपना बना लोगे तो मेरे अजीजों, फिर तुम गरीब नहीं होगे, फिर तुम शाही कैनों का फिरका बन जाओगे। हालेलुया। फिर बादशाही कौम में शामिल होगे और मुकद्दसों के साथ उस मिरास के हिस्सा को लोगे जो खुदावंद यीशु ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। उन्हें वादा नहीं किया, मैं जांदा तेरे लिए मकान, तेरे लिए जगह तैयार करदा हां। हालेलुया। एदा मतलब आसमान ते तुहाडे लिए घर तैयार हो रहा है, लेकिन उत्थे शामिल वही होणगे, ओ हिस्सा उन्हां नूं ही मिलेगा जिहड़ी यीशु मसीह नूं पूरे दिल नाल कबूल करके ओदी पाक हुक्मां दे मुताबिक जिंदगी नूं बसर करेंगे। हालेलुया। और मेरे असीसों, देखो कि उसकी हाथ में कुदरत है। उसने कहा कि मैं अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ, बीमारां नूं शिफा देण लई और कुचलिया होया नूं आजाद करन दी खुशखबरी। हालेलुया। और ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है, हमें मुफ्त सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसका पहला बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत, ये लास्ट है, गौर से सुनिएगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसका पहला बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। यीशु को बाप ने भेजा, बेटा हमारे लिए बख्श दिया गया, लड़का हमारे लिए तवल्लुद हो गया और बादशाहत और सल्तनत उसके कांधे पर है। वो सुलह सलामती का शहजादा है, उसकी बादशाहत और सल्तनत का आखिर कभी भी ना होगा। उसका नाम अब से लेकर अब तक मुबारक है। हालेलुया।
और जब वो नहीं खत्म हो रहा तो इसका मतलब उससे जुड़ी हर एक चीज भी कभी खत्म नहीं होगी। तो जब आप भी उसे कबूल करेंगे, क्योंकि क्या फरमाता है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। इसका मतलब की है कि वो सानू अपना कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे हो। उसने हमें अपना बनाया है और सच्चाई ये है कि हमने उसे कबूल नहीं किया आज तक, अभी तक हमने उसे कबूल नहीं किया। असि क्रिसमस कह के बड़े जश्न मनाने, अच्छे अच्छे पकवान और बड़ी ड्रेसिंग करते हैं, मैं सब ना लहदा लगा। आप नहीं चाहते कि आप रूहानी बन जाए, आप नहीं चाहते कि आप यसु की वो दुल्हन बन जाए जिसको वो लेने के लिए आ रहा है। पहली आमद हो चुकी, दूसरी आमद होने वाली है, अब वो आने वाला है दोबारा से और अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को जो उसकी वफादार है, जो उसकी ताबेदार है, उसको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। ते आज का मैसेज की है कि ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ शान ਵਧੇਗੀ। हालेलुया। उसे कबूल करो क्योंकि वो तुम्हारे लिए आया है। और देखो कि उसका कोई गुनाह भी नहीं, फिर भी उसने कितना कुछ सहा, किसी के लिए, हमारे लिए, ताकि हम जिल्लत ना उठाएं, हम लानत वाली जिंदगी ना बसर करें, हम तारीकी में फंसे ना रहे, हम इब्लीस की गुलामी में ना रहे। हालेलुया। आज दिल से उसे कबूल करें। पता है जो किसी की बर्थडे होए ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਹਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ? सब कुछ ते ओदा दिता, सिर्फ कुछ दे नहीं सकते, लेकिन वो आपका और मेरा दिल मांगता है। हालेलुया। 2023 जो गुजर चुका है, हमने उसे कुछ दिया या नहीं दिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी तुम्हें प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन हमें इस आखिरी महीने में उसे कुछ ऐसा देना है जिससे वो राजी हो जाए। हालेलुया। अच्छी ड्रेसिंग करके इंसानों को राजी नहीं करना, असी रब नू राजी करना है। हालेलुया। ताकि आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते खुशी मनाएं। आमीन। आज जिस तरह मजूसियों ने सोना, मुर और लुबान उसको नजर किया है, उस बादशाह के बादशाह को इस साल आप भी अपना दिल उसे नजर कर दे, अपनी जिंदगी का हर मामला उसके हाथों में दे दो, तो वो खुशी मनाएगा, वो खुश होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो मेरे पास वापस लौट आई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। हालेलुया। यानी कि वो बादशाह है तो तानू शहजादे और शहजादियां बनाना चाहता है। हालेलुया। ते जे बादशाह तो सल्तनत ओदे इख्तियार दे विच है, तेरा मतलब शहजादे और शहजादियां भी उस बादशाह दे उन्ने ही हकदार ने। हालेलुया। तो ये तब ही मुमकिन होगा जब हम उसे दिल से कबूल करेंगे। हालेलुया। आज पूरे दिल से हम उसे अपना मानेंगे। हाँ, वो आप ही के लिए आया है। आए अपने सीधे हाथ को दिल पर रखें। अगर आप ईमान लाते हो इस बात पर कि हाँ यीशु मेरे लिए भेजा गया ताकि मैं जो कुचला हुआ हूँ, मैं जो कुचली हुई हालातों के वसीला से इब्लीस की
करते हैं, इस पाक विधि और कुर्बानी के लिए शुक्र करते हैं, आपके बेटे के इस दुनिया में आने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और ए बाप आज से अहद करते हैं, अगर आप पूरे दिल से यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, अगर आप उसे पूरे दिल से अपना खुदा और बादशाह मानते हैं, तो अभी इसी वक्त पूरे दिल से अपने आप को उससे दे दो, ताकि वो तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए। वो तुम्हें मुबारक बनाना चाहता है, वो तुम्हें अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है, वो तुम्हें शाही कायनों का फिरका मुकद्दस कौम बनाना चाहता है, वो तुम्हें आसमानी शहरी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम हमेशा की जिंदगी पाओ, तुम हमेशा का आराम और सुकून पाओ। वो चाहता है कि तुम उसके जलाल में उसके साथ हो, वो चाहता है कि तुम हमेशा तक उसके साथ बादशाही करो। हालेलुया। ए बाप तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। थैंक यू होली स्पिरिट। पूरे दिल से खुदावन हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं, आपको ऊंचा और सर बुलंद करते हैं। खुदावन आपका नाम हमारी जिंदगियों में अब से लेकर अब तक जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से बाप हमारी मिन्नत और फरियाद को सुन और कबूल कर। आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा करते हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और किरपा को दुचराकर हाजिर जमात के साथ, हाजिर जमात के घरानों के साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, मुल्क पाकिस्तान और कौम इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।